So Tejas, I wanted to know that how did you get into drones and what is FPV? Okay, so starting off with FPV stands for first person view. Okay. So basically when you play a game, so it has a 3 special modes. It's like a person mode, a third person view, a first person view. So it's basically similar to that, where a pilot or a person who is flying the drone is actually getting a live transmit from the goggles or from the drone to your goggles, and that's how you maneuver the drone. So that is called the first person view. And उसके कोई competitions वगैरह होते हैं क्या? So basically this grown up from a culture where engineering college students used to play it as a hobby, but then it turned out into be a inter college competition, then in a full-fledged national competitions. So basically a guy called Johnny FPV, not specifically him, but that sort of guy mounted a GoPro action camera on it and sort of used it on a YouTube video or a small production house, a small video. Then the culture started up. Okay. So that's how it grew about 2 years ago. So that's how it boomed after a lockdown or somewhat around 2 years back. Okay, got it. And how did you get into drones? So basically my story started from lockdown. Okay. So basically there was ample of time to do a time pass, make it productive. So I सोच विचार करने को बहुत ज़्यादा टाइम था. हाँ, बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा. 2 साल अपने बस कुछ करने के लिए था नहीं. So I stumbled upon a YouTube video, same guy Johnny FPV and few suggestion videos. So then I started थोड़ा रिसर्च किया ये क्या होता है. Then फिर देखा इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं. फिर इंडिया में है तो कैसे उसको एक्सेस कर सके. Few foreign sites were not accessible. थोड़े बैंड्स थे वो जो चर्चा था उसका. करेक्ट. तो फिर लोकल कोई बंदे थे आरसी बैकग्राउंड से, कोई इंजीनियरिंग से, तो उनसे कुछ रेफरेंस लिया, कांटेक्ट नंबर लिए. तो लॉकडाउन में इट वाज वेरी वेरी टफ टू गेट इन कांटेक्ट विद देम. करेक्ट. तो थोड़ा पेशेंस वहीं पे थोड़ा बिल्डअप हुआ. पेशेंस नहीं था पहले बट हो गया, थोड़ा होते होते सीख गया. फिर हाउ टू गेट इट टू द होम, हाउ टू मैनेज द कुरियर गाय, तो उसको पैसे ट्रांसफ़र करो, ये सब बहुत सीखने को. लर्निंग का बोलते तो इतना कर्व हो गया तो वो एक्चुअली यू टर्न हो गया. क्या बात है. वो इट वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क टू गेट इनटू दिस, बट आई एम हैप्पी टर्न आउट विद दिस गुड. वी आर टू. टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड. हाउ वर यू बॉट अप, योर चाइल्डहुड जर्नी अब तक, मतलब टिल यू गॉट इनटू ड्रोन्स, लाइफ कैसी थी? लाइफ वाज pretty good. फैमिली सपोर्ट था. माई मॉम डैड इज एन फ्रॉम आर्टिस्ट बैकग्राउंड, सो मेरा आर्टिस्टिक स्किल्स ज़रा अच्छे हैं. आई डोंट नो, मतलब हेरिडेटरी अच्छे मिले. आई एम वेरी ग्लैड टू दैट. वो बहुत यूज़फुल आए अब तक. करिकुलर एज इन एजुकेशन, मैथ्स, अलजेब्रा उसमें अच्छा नहीं था, बट व्हेन इट कम्स टू कौन अच्छा होता है? वो भी बात सही है, बट आई एम ग्लैड कि मैं अकेला नहीं हूँ उसमें. करेक्ट, एग्जैक्टली. तो आर्टिस्टिक स्किल्स मेरे अच्छे थे, तो उसमें थोड़ा मेरा प्लस पॉइंट्स ज़्यादा रहा. थोड़े दोस्त अच्छे बने. वो भी एक रहता है फैक्टर्स, डायग्राम बनाओ, फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाओ, तो वो उसमें थोड़ा हुआ. और कमिंग टू द फैमिली पॉइंट, मॉम डैड भाई एवरीवनस बीन प्रीटी गुड, प्रीटी चिल्ड आउट. जो भी कर रहा हो सपोर्ट कर रहे हैं बचपन से ही. अभी भी बाइक चलाओ, ड्रोन उड़ाओ, शूज़ पेंट करो, जो करना है करो, फुल फ्रीडम. Exactly. Yeah. I know. And it feels great to have family support because somewhere I find that is a key for your growth. I mean ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चों, मतलब जो बच्चों को family support नहीं मिलता है वो grow नहीं करते, but जिनको मिलता है वो जल्दी grow करते हैं. मतलब तो that is, I feel it is very important and I feel very good that family was सपोर्ट रहता है उनका. Correct. कुछ हुआ तो पेरेंट्स है, कोई तो मॉरल सपोर्ट दे रहा है, मतलब. And you are born and brought up in Pune? Yeah, I'm here been about 24 years. Born and brought up in Pune. Born and brought up in Pune. And what did you do? Your school, your college? So this might sound very, very either interesting or a very ajib. I am from a commerce background. Oh, and still you got into drones. Yeah. So इतना टाइम था कि करियर स्विच करते. सही है, but actually I feel कि it is, मेरे को तो अजीब नहीं लग रहा है. I feel good about it कि डोमेन एक्सपर्टीज, मतलब साइंस का ही बंदा ड्रोन बना सकता है, कर सकता है ड्रोनिंग में. कुछ ऐसे कुछ नहीं है. Anyone can do it who has a will. Matter of curiosity. Exactly. Yeah. So schools, college, tell us. I done my graduation. I just completed my graduation. I'm 24 years old.
बीच में कोई था सिचुएशंस जहाँ पे फिर और मेरे को 2 साल का टाइम मिला कि सोच सकूँ मैं क्या करना है नहीं करना है. वैसे कहे जाए तो आई एम नॉट दैट गुड इन टू एजुकेशन व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट वाइज, बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स आई वॉज एंड आई एम स्टिल गुड एट इट. फिजिकली भी हूँ, दिखता नहीं हूँ बट आई एम गुड. नहीं काफ़ी. सो हाँ, कॉमर्स का तो हो गया. कॉमर्स, आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. स्कूल भी पुणे से ही हुआ, कॉलेज भी पुणे से ही हुआ. सॉर्टेड. तो आई एम प्रीटी मच लोकलाइज्ड, यू कैन से. आई फील दैट यू नो just because you got that time to think, it helped you to go deep down and find out what you actually love or are or would be passionate about. क्योंकि experimenting तो चलते रहता है. I mean I'm pretty sure कि ऐसा तो नहीं होगा कि पता था, just करके देखेंगे और फिर बाद में we'll see what it turns out to be. So that was the whole concern, not concern, that was the whole agenda कि either go with the flow और जैसे जैसे तुम जा रहे हो सीखते जा रहे हो, दैट्स हाउ यू गोना लर्न. सिर्फ बुक्स में मिलता है आपको नॉलेज, आई एम नॉट गोना से कि नहीं मिलता है, यू लर्न इट, बट एट सम पॉइंट आप जब बाहर जाते हो, फिर एक वर्ल्ड में आते हो कि कोई एक्सपीरियंस सिचुएशन में जाते हो, तब आपको कॉन्कर करने का या फिर उसको टैकल करने का मिल जाता है. सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाज माय की टू सक्सेस, यू कैन से. वेरी नाइस. एंड आउट ऑफ, आई मीन टिल द जर्नी अप टिल नाउ, who has been your greatest support or what is your aspiration? Who was your aspiration? Family. क्लीशे लगेगा बट फैमिली इज दी मेन थिंग कि जो आपको ना आपको ये करेगा, तंग करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता. फैमिली इज दी ओनली थिंग that will either help you get out of the situation and either put you back in a situation where you learn new things. Correct. So family has been the best back support. And in this industry that you have got into, drone shooting, FPV, who do you look up to? Who was your aspiration? वैसे तो कोई है नहीं, बट वो कंपटीशन रहता है कि आई वांट टू बी बेटर देन दिस गाय, ही इज गेटिंग मोर शॉट्स, मोर शूट्स, आई वांट टू बी देयर. So somewhere your competitors are your aspiration, because उनको देख के you are improve. तो वही है, मतलब वैसे कोई ये रखा नहीं है, टॉप का रखा नहीं है. आई वांट टू बी एट द टॉप एंड स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ. सो आई एम प्रीटी गुड, मतलब hopefully. Yes, definitely. And Tejas, I wanted to know कि कौन से point पे you got to know that drones can actually make money for you, because I'm pretty sure you started with just experimenting and trying it out, COVID. बराबर. तो पैसे भी बन सकते हैं, ये realization कब हुआ? So जब अभी 2 साल का जर्नी था, तो आई से कि पहले 6 months थे जहाँ पे मैं सीख रहा था. सो देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि तभी फेयरली नहीं होता कि किसको पता नहीं था. आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट. पूरे इंडिया में कल्चर भी बहुत कम था. सो 6 महीने सीखते जा रहा हूँ, पोस्ट करते जा रहा हूँ, तो वहाँ से एक प्रोग्रेस भी दिखता है कि क्या क्या किया, कैसे किया. आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग, तो वो यूट्यूब पे डाला. देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन माई कॉन्टैक्ट्स इन टू ड्रोन. फिर थोड़े प्रोडक्शन हाउस में थोड़े जान पहचान थे. सो फ्यू गाइज वॉन्टेड टू यूज़ दिस एज अ एक्सपेरिमेंट टाइप की. उनके सिंस आई एम फ्रॉम अ मोटरसाइकिल बैकग्राउंड, तो कोई रेस चल रहा है, कोई बाइक चला रहा है, तो वैसे वैसे करते करते कॉन्टैक्ट्स बनते गए. देन आई स्टार्टेड पिचिंग आउट कि दिस इज़ वेरी न्यू, आपको अगर करना है तो वी कैन ट्राई इट आउट. या मैं मानता हूँ कि फ्री करना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बोलते कि यू आर यूजिंग योर स्किल एज अ फ्री विच कैन हैम्पर द अदर गाइज हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड. बट एट अ पॉइंट यू हैव टू डू इट फॉर फ्री. फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, यू गेट एक्सपीरियंस. तो देन आई स्टार्टेड पिचिंग मोर, फिर पैसे मांगने लगा. देन इट स्टार्टेड आउट ऐसे. एंड यू टॉक्ड अबाउट बीइंग इनटू मोटरसाइकिल्स एज वेल, तो उसकी क्या जर्नी? आई मीन यू वर राइडिंग, यू वर ट्रैवलिंग, व्हाट काइंड ऑफ मोटरसाइकिलिंग यू वर? सो फनी स्टोरी. आपको एक बच्चा, टीनेज बच्चा रहता है, आपको एक गाड़ी दे दी जाती है. So you started feeling very close to that stationary object, not stationary but a non-living thing. So you get pretty attached to that. तो वो जर्नी मेरे पास मोपेड मिला, कॉलेज जा रहा था, तो फॉर अ वेरी टीनेज गाय जिसके पास बाइक नहीं था, कुछ नहीं था, बस से जाता था. सो यू गेट अ मोपेड, सो यू प्रीटी हैप्पी विद दैट. करेक्ट. फिर उधर से बाइक कल्चर में कॉलेज के बंदे, उसमें थोड़े जान पहचान हो गए. देन आई स्टार्टेड वही क्यूरियोसिटी कि ये दूर जाके करते क्या है, इतना दूर क्या मज़ा आता है हेलमेट पहन के. हेलमेट तो अलाउड भी नहीं है, मतलब पहनता नहीं है, तो इसमें क्या मज़ा आता है. बट देन यू स्टार्टेड गोइंग आउट ऑन राइड्स, हेलमेट पहनते हो, सो यू गेट अटैच टू हेलमेट्स, गेयर्स, तो वो सेफ्टी वाला भी फील आता है. करेक्ट.
ऐसे ही बढ़ते बढ़ते देन आई स्टार्टेड राइडिंग विद देम, फिर मज़ा आने लगा। प्रीटी कैजुअल, या मतलब ऐसे कोई एजेंडा नहीं था कि मेरे को बाइकर ही बनना है, मेरे को ड्रोन ही उड़ाना है, बट फ्लो पे गो विद द फ्लो। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही लोग आपके फर्स्ट क्लाइंट्स भी बने, वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट्स हु टुक योर ड्रोन शूट्स एंड आस्क्ड यू टू शूट इट, they are motorbiking. every aspect that happened with in my life was sort of connected to each other. तो एक एक कनेक्ट करते करते ही मेरा सर्कल बढ़ा। करेक्ट। Power of networking is great, very great. और especially when you are with the right people and you know some idea which is a new thing for them, तो curiosity उनकी भी बढ़ जाती है कि ड्रोन पे मेरा बाइकिंग स्किल्स कैसे दिखेगा। बिकॉज नॉर्मल कैमरा पे शूट करना तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो शूट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, फोटो शूट्स चल रहे हैं, वीडियो शूट्स चल रहे हैं, बट ड्रोन पे मेरे ही स्पीड से कोई बंदा एक चीज उड़ा रहा है जिससे मेरा स्पीड और उसका स्पीड मैच हो रहा है, एंड वो टाइम पे मेरा शूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्यूरियोसिटी उनमें भी होगी। वो स्पार्क रहता है कि दोनों का बेनिफिट भी हो रहा है, you're both getting experience, तो बहुत सही हो रहा है। मतलब I feel great that you were with those people, because if you wouldn't have been into the people who are working on bikes, biking gears, traveling, riding, तो शायद फिर एक्सपोजर थोड़ा कम हो जाता, नेटवर्किंग कम हो जाता, तो ड्रोन का जो आइडिया है वो मोमेंटम लेने में थोड़ा टाइम लगता है। Got it, pretty sure. So Tejas, I wanted to know that what kind of gear do you use? I mean, what are the drones that you use and what's your gear? So basically सब Chinese brands है। Okay. तो अभी तो इंडियन मेड को कोई है नहीं, so we have to rely on Chinese brands. So basically DJI being the latest brand in the drone market, so we have a digital setup. So basically this is a 3-inch drone. Okay. So basically इसमें कैसा रहता है कि जो भी लाइव ट्रांसमिशन है वो ये कैमरा से इधर पीछे वीडियो ट्रांसमीटर, so it transmits live feed through this drone to your goggles. Okay. So basically when it comes to goggles, this is how a goggle looks. Correct. So it has a basic setup which a frequency वाला setup रहता है. So it has 4 antennas. तो goggles में you have a screen where you wear it and you get a field of view of what's happening around you, not around you but what a drone is seeing. Correct, got it. तो ड्रोन कैसे, तो ये FPV है। हाँ, so this is the basic equipment I will say कि ये है first person view का experience देने वाला gear. Okay. So this will be the first top level का, got it, top brand वाला gear. Then it comes to this drones. So basically these are carbon fiber made. Okay. So you can say carbon fiber being a lightest and a sort of a durable material. So these are made from this. Okay. From carbon fiber. Okay. It has basic antennas, receivers, motors, propellers, and few other miscellaneous things. So got that. Okay. And it comes in various varieties. So this is used for like I mean you have indoor outdoor के अलग अलग, और जब वो FPV जाता है तब उसका कोई अलग, जैसे अभी what is this type? So basically when it comes to client, he can say कि मेरे को outdoor shoot चाहिए, indoor shoot चाहिए. So for that we have a specific needs वाला drone. So basically these are the specific racing drones which are mounted with GoPros or any action camera in that sense. ये open भी है, मतलब so इनका wing. This is not the DJI वाला finished products. So these are the handmade custom built drones. So it's very open, थोड़ा open है, कुछ wires दिख रहे हैं, कुछ zip ties लगा है, 3D printed parts है. So this is how a drone looks for a generic FPV pilot. Got it. Or whoever flies. This wire hangs around, zip ties लगा है, टेप लगा है, इलेक्ट्रिकल टेप लगा है, ग्लू लगा है, हॉट ग्लू लगा है, बहुत क्या कवर। It's very raw, very energetic, and not energetic, it's very raw feel वाला ड्रोन। Got it. और waterproof नहीं है, so you have to be careful for that. Got that. और ये है, this drones can go around 80-90 kilometers per hour. Oh, okay. Yeah, so that's pretty how fast. fast they are. तो ये है, this is the very slow and slow moving indoor वाला drone. This is very fast outdoor drone. Got it.
तो ये रेसिंग है, ये फिलहाल वी कैन कंसिडर इट, ये प्री वेडिंग्स में जो होते हैं वो इस पे हो सकता है। हाँ। गॉट इट। प्री वेडिंग का वो फेवरेट है वो। और ये जो एक थर्ड वैरायटी आपने वी हैव, व्हाट इज दिस? सो दिस इज आल्सो प्री वेडिंग वाला, बट प्री वेडिंग विद अ सॉर्ट ऑफ अ फास्ट मूवमेंट, जहाँ पे वेडिंग के साथ कुछ दूसरा भी दिखाना है। सो इट्स बेसिकली दोनों के बीच वाला ड्रोन। ओके। सो इट कैन डू बोथ, इट कैन डू रेसिंग ऑल्सो, इट कैन डू इंडोर्स ऑल्सो। सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिडल ग्राउंड फॉर दिस ड्रोन। गॉट दैट। It's almost the same as the small one, but it can go fast as a fast one also. Great, कमाल। बहुत varieties है, बहुत varieties। Overall मतलब what do you think? How many varieties do we have in drones? So basically अभी के इसमें तो I can say FPV is also a booming stage. Also मैं सुन रहा हूँ कि artificial intelligence भी बढ़ने वाला है। So we probably have a chance to get good jobs into AI things, or even for Amazon or any other thing जो चल रहा है अभी, try and tested चालू है। So we probably, I think we can say कि we possibly have a job opportunity mostly. Let's hope so. Got it. And there is one term which I think very closely resembles with you, is starting from scratch. Because I know that you have built all these drones from scratch by yourself. These are not bought from any website or something like that. So what inspired you to start from scratch? Because you were new into this sector, but yet you started to go from कि zero से start करते हैं. तो what inspired you to do that? Curiosity. Again, that's the only spark that brought me from nobody to somebody. Got it. तो जब तक आप करते नहीं हो तब तक आप कुछ हासिल नहीं करते हो। So I know I was gonna spend about thousands either doing it or not doing it. Then why not doing it? तो करने के बाद मैं वेस्ट किया, बट एक्चुअली आई मतलब इधर से इधर तो पहुंच गया मैं। आई नो मतलब जब मंगाया था तो कुछ पता नहीं था, इवन अ सिंगल थिंग की सोल्डर कैसे करते। आई एम बीइंग फ्रॉम अ कॉमर्स, मेरे को कुछ पता कोई अंदाज नहीं, हाथ जलाओ, टोटली रिजेंबल। हाँ, तो वो उसमें थोड़े पैसे वेस्ट हुए, बट आई इवेंचुअली लर्न कि ये नहीं कर सकते, वो करते। तो फिर धीरे धीरे करते करते। बट आई डू बिलीव इन दिस अप्रोच, यू नो, बिकॉज एक तो 1 लाख की कोई चीज़ मंगा रहे हो तो उसमें तो खुद तो कुछ सीख नहीं पा रहे हो, उससे अच्छा 50,000 स्पेंड करो और वो चीज़ बनाते बनाते खुद भी सीख लो ताकि फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। एंड ये जर्नी कैसी रही है, मतलब वॉज इट टफ? बिकॉज आई नो ऑब्वियसली नथिंग इज़ ईजी, सो वो जर्नी कैसी रही है बनाने की, वो पार्ट्स मंगाने की, असेंबल करने की? बहुत ही मतलब घुमा फिरा वाली बात थी कि कैसे पार्ट्स मंगाए, कौन से पार्ट्स किसको मैच होते हैं। दैट टू यू हैड द ड्रीम इन कोविड, तो और ज़्यादा टफ था। ऑल्सो यूट्यूब हेल्प मी अ लॉट। ओके। तो इंटरनेट एक्सेस, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बहुत थे। सो बट इवन फ्रॉम दैट कि ये ट्यूटोरियल से कैसे मंगाते हैं, इंडिया में मतलब इतना भी हाईफाई नहीं है कि वी हैव DHL ये वो सब, मतलब इतना एक्सेसिबल नहीं था। सो फिर लोकल मेड से बनाओ तो हीट श्रिंक लिया, वायर लिया। तो दिस थिंग्स हैज़ अ सो मच ऑफ वेरियस डाइवर्सिटी कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू विल प्रिटी गेट व्हाट थिंग्स आर, क्या यूज़ कर सकते। बट फॉर अ कॉमर्स और अ न्यू सब कुछ नया था, सब कुछ मतलब बहुत कुछ नया था। तो मतलब स्क्रू के डायमीटर, सरकमफरेंस सबसे लेके टिल अ फाइनल प्रोडक्ट कि उसको उड़ाते कैसे। सो आई से कि ये जहाँ से बना मैं अभी तक सीख रहा हूँ, क्योंकि एवरी फ्लाइट और एवरी सिचुएशन इज़ अ न्यू फॉर मी। क्योंकि जब आप एक जगह पे उड़ाते हो सो यू हैव अ प्रिटी सेंस कि यहाँ पे झाड़ है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे वायर्स है, बट व्हेन यू गो आउट ऑन अ न्यू प्लेस तो आपको पता नहीं रहता। Got it. So every flight, every battery is a new learning curve for me. So और वो अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है और चलते रहेगा। So it's no ऐसे कुछ रुकने वाला बात नहीं। But I'm very happy that you know you did it from zero, because वो सबको नहीं जमता है, to be very frank। और ना मतलब भले ही I have that mindset, but करते करते मैं वो छोड़ देता हूँ कि नहीं हो रहा है यार, मतलब वो इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो जाते हैं कि उसके बाद लगता है कि छोड़ दो, आई थिंक इट इज़ बेटर टू बाय। तो कूडोज टू यू बिकॉज यू केप्ट इट गोइंग और छोड़ा नहीं आपने। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू आस्क यू कि डिड यू, वॉट वॉज योर गोल वेन यू प्लान्ड, आई मीन ग्रेजुएशन के बाद का क्या प्लान था?
what was your goal after graduation? Genuine frank वाला, first वाला. अच्छा, first वाला. So अपने को हमें पता नहीं था कि कोविड होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो कितना दिन चलेगा. सो सॉर्ट ऑफ ये भी चल रहा था कि अगर मैं ड्रोन का भी स्टार्ट करता हूँ तो कॉलेज का कैसे करना है. तो घर वाले बोल रहे थे कि गेट अ स्टेबल जॉब, डू ग्रेजुएशन, ये कंप्लीट कर वो कंप्लीट कर. बट था कि ये भी करना है. चलते 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 हो गया. क्वेश्चन इज सकते. द क्वेश्चन इज अबाउट यू नो व्हेन यू पास्ड आउट, तब का कोई इनिशियल प्लान था क्या? नहीं, बेसिक यही था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं. इधर बीइंग कंसिडरिंग माय स्किल सेट्स, आई वाज गोना अपीयर फॉर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग. बट वो सिचुएशन ऐसे थे कि पता नहीं था करना है, तो एक साल उसमें चला गया. फिर उसमें डिज़ाइनिंग के डेट्स, एग्ज़ाम्स बहुत अलग रहते. करेक्ट. फ्रॉम बीइंग डिजाइनिंग यू टॉकिंग अबाउट UID NID वाला, MIT हो गया ऐसे. बट उनके एग्जाम्स, उनका कल्चर बहुत अलग है. अपने को अपना जून में कॉलेज स्टार्ट होता है, वो वाला आदत पड़ गई. वो आदत थी. तो उसमें मेरा एक साल उसमें चला गया कि आई मिस्ड आउट ऑन द डेट्स. फिर ऑनलाइन सर्च किया, क्रैश कोर्स लगाया, फिर उधर भी इतना लगा नहीं कि हो सकता है, नहीं हो सकता है. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको ड्रॉप ही करते. एक साल ड्रोन कर रहे, लेट्स गिव दिस अ 1 year चांस. उसमें अगर वी सी अ पॉसिबिलिटी कि आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ दिस, मेक अ अर्निंग आउट ऑफ दिस, विल कीप दिस टिल इट गोज. तो अभी करियर, एजुकेशन करियर छोड़ दिया, नॉट छोड़ दिया, इट्स ऑन अ होल्ड. करेक्ट. तो अभी ये कर रहा हूँ. आई एम डूइंग दिस एज अ फुल फ्लेज drone. Since 2 years now. It's 1.5 year. Sort of 1.5 year. Great, man. My next question was obviously, I mean, about that only, that you are good in painting. So you have painted bikes, you have painted helmets. I mean, people come and do take a custom painted helmet from you. You paint shoes. So you love doing that, and I've seen some of your videos also. So लगा नहीं कि ठीक है डेट्स तो मिस हो गए अपने for applying and all that stuff. बट जैसे ड्रोन का एक पैशन डेवलप हुआ है, वैसे ये तो पहले से चल रहा था, तो एक चांस इसको देना चाहिए. ऐसे लगा नहीं, मतलब नॉट ओनली यू, फैमिली को भी ऐसा लगा नहीं कि यार तेजस एक बार कर दे, इतना अच्छा कर रहा है. योर पेंटिंग जैकेट्स, योर पेंटिंग हेलमेट्स, शूज़. बट वैसे पेरेंट्स मेरे आर्टिस्ट थे, सो थोड़ा DNA आ गया. बट सीन ऐसा था कि यू मेकिंग गुड स्टफ, यू मेकिंग कस्टम जैकेट्स, बट वो जो लेने वाला पब्लिक है, इट्स वेरी नीश, कि सबको कस्टम्स पसंद नहीं है. जिसको पसंद है दैट्स लाइक 1 or 2 out of 10. वो तो तुम ये करके भी केटर कर सकते हो. हाँ, सो दैट वाज नॉट द प्रायोरिटी कि यही बना कि इसको ही बेच के पैसे कमाया जाए. करता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील. करता हूँ, आई गेट अ साइड हसल आउट ऑफ इट. सम पीपल कस्टम प्रोडक्ट, सेलिब्रिटीज, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है. हाँ, इट्स थोड़ा स्किल सेट भी अपना क्लियर टच में रहता है. हाँ, टच में रहता है. फैमिली ट्रेडिशन भी चालू है थोड़ा. सो वो प्रायोरिटी नहीं है, बट आई कैन डू दोज ऑल्सो. ऐसे गॉट इट. बस एजुकेशन थोड़ा दूर रखा है. Let's not hamper with education. No worries. You won't. I mean, what I see is that now that you're following what you actually love, जरूरत नहीं पड़ेगी. I'm pretty sure of that. नहीं पड़ेगी. Tejas, what were the worst criticisms you got in your journey up till now? क्रिटिसिजम्स जो अभी लोग थे who started off with me, जो कॉलेज मेरे साथ स्टार्ट किया, एंड किया, ग्रेजुएशन जिसके साथ हुआ, तो वो था कि वो लोग बोल रहे थे कि यू गेट अ डिसेंट जॉब, हमारे साथ प्लेसमेंट में लग जा, इधर लग जा, बैंक में लग जा. बट आई वाज लाइक क्यों, सब तो कर रहे उधर, मतलब सब भरे हुए उधर, तुम पहले से लाइन लगाए इतना, मतलब सीधा मुंह पे नहीं बोला. बट दैट वाज माय वे ऑफ थिंकिंग कि बहुत गर्दी इधर. अगर दुकान में जाते हो तो वहाँ पे गर्दी, पेट्रोल पंप पे जाते हो गर्दी है, सो यू नो कि उधर नहीं जाने का, अपने दूसरा जगह जा सकते. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट पर्सपेक्टिव कि है इधर ही लाइन है, तो लेट्स गो देयर, कोई दूसरा ट्राई करते हैं. आई नो घूम फिर के इधर ही आना है, सो व्हाई नॉट गो अराउंड, जस्ट टेक अ वॉक. हाँ, घूम के आते, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, फिर इधर आके अप्लाई करते हैं वो. तो वो सॉर्ट ऑफ अप्रोच था. क्रिटिसिज्म बोलते तो आई वोंट से बैड क्रिटिसिज्म, बट वो जो
स्पेसिफिक थिंकिंग रहता है कि वाई नॉट गेटिंग अ स्टेबल जॉब, शादी अभी 2-3 साल में शादी होगा, ये होगा वो होगा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है, ये तो वो एक रिलेटिव से आता है. बट एट अ सर्टेन पॉइंट जब उनको भी पता चला कि ये एक्चुअली घूम भी रहा है, बड़े क्लाइंट्स के साथ काम भी कर रहा है, इट्स मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, sort of a stable, you can say stable career, जो उन्होंने नहीं किया, but someone from their family is representing them. Yes. तो वो उसके बाद एक sort of एक certain period के बाद वो भी convince हो गए कि हाँ कोई तो है, कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है, and making money out of it. So that's a big deal for them also and for me also. Very true. I mean, the way you started by getting those parts in COVID time and you know वो idea थी तभी बस कि करके देखते हैं, to now your association with Red Bull Racing India, Mahindra, Bajaj and some good racers out there who are preferring you. So how has the journey been and how do you feel about these collaborations? It's like a, you can say it's a very big honor. जब कोई actor को कोई movie मिलता है या फिर award मिलता है, you know that एक जो लेवल रहता है कि यू आर वर्किंग विद दिस बिग गाइज, यू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव अ सॉर्ट ऑफ अ स्टेटस को टू मेंटेन कि आपको शॉट देना ही है, तो वो एक अलग लेवल है. मतलब यू गेट दैट फीलिंग कि भाई मैं भी टॉप पे आ गया हूँ भाई अभी, मतलब यू गेट दैट सेंस ऑफ अल्फा बोल सकते हो. yes. तो जैसे जैसे काम कर रहे हो वैसे बिग क्लाइंट्स मिल रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स बढ़ रहे हैं और कोई अलग मिल रहा है मतलब it's very good. I'm pretty sure and fingers crossed you'll get more better clients. But जब स्टार्ट किया था तभी लगा था ये लेवल पे आएंगे? कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ग्राउंड पे जाके उड़ा रहा हूँ चड्डी पहन के, ये मतलब वो बहुत हॉबी वाला फेज था. बट अभी जब उड़ाता हूँ तो इट्स वेरी टेक्निकल स्टफ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, कोरियोग्राफ्ड है. हाँ, तो यू हैव पीपल वेटिंग फॉर यू, यू हैव अ स्पेशल कार फॉर यू. क्या बात है, क्या तो आपको कॉल टाइम दिया जाता है, आपको यहाँ पे गाड़ी आएगा, आपको लेने आएगा, सो आपको वो भी थोड़ा मैच्योर्ड भी होना पड़ता है. सो इट्स अ वेरी लर्निंग प्रोसेस. काफ़ी अच्छा है ये ना, बिकॉज कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव दीज रेप्यूटेड क्लाइंट्स नाउ, तुम खुद सीधे हो जाते हो. और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. वही है, यू हैव टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड, गेट आउट, गेट लिव विद इट, तो आपको थोड़ा महसूस होता है कि कैसे हाउ थिंग्स वर्क. सबसे मेमोरेबल कोलैबोरेशन किसके साथ था? अभी तो टफ क्वेश्चन. सभी मतलब मेरे लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स थे, मैंने सोचा नहीं था, बट एवरी ब्रांड हैज़ बीन वेरी एपिक विद द प्रोडक्शन, बहुत सही गया, मतलब इट्स बीन अ किक-एस जर्नी. क्या बात है, एंड मे इट कंटिन्यू. So and I also wanted to ask you कि what are your next 5-year plans? What's your aspiration, your goal in the next 5 years, and what is the future of drone industry in India? Okay, so considering these 2 years, after considering these 2 years, one year has been a very learning process for me. Correct. Second year I've been started from a home ground, जो पार्किंग में उड़ाते इधर उड़ाते. I've been from there to a YouTube channel. तो 1 साल मेरा उसमें चला गया. So next 2 years I'm planning to get some in music videos, थोड़ा टीवी कमर्शियल्स में आ सकता हूँ, या फिर कोई बॉलीवुड, लेट्स होप बॉलीवुड वगैरह कुछ होता है तो लेट्स होप सो. मेरे 3 ईयर तो अभी फिक्स है. आई कैन नॉट से अबाउट द लास्ट 2 years. तो 3 years है, मैं एक साल एक सेक्शन को दे रहा हूँ, एक कैटेगरी को दे रहा हूँ. लेट्स होप एंड आई श्योर आई मेक इट टू दोस years. अरे जरूर, यू आर डाइवर्सिफाइंग बेसिकली. तो एक ही टाइप का ना हो जाए सब कुछ, तो थोड़ा अलग अलग. हाँ, और थोड़ा अपग्रेड भी हो जाए कि यस डेफिनेटली सबको अपना स्किल्स का चस्का लग जाए. हाँ, जरूर. और ये ड्रोन इंडस्ट्री का इंडिया में फ्यूचर क्या लगता है? अभी सच बात कहे तो इट्स अ वेरी ग्रेइश एरिया कि एक्सेसिबल है बट इट्स नॉट लीगल. तो अभी गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रपोजिंग वेरी फंडामेंटल थिंग कि मेक इन इंडिया वाला. सो दे आर ट्राइंग टू हायर दिस एस्टैब्लिश्ड ड्रोन गाइज टू मेक सर्टन ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर, फॉर सिक्योरिटी, इंस्पेक्शन. तो वो अभी सिचुएशन चालू हो गया है. सो आई कैन, इट्स वेरी
बिकॉज बाहर तो बूम कर रहा है, बहुत बूम। स्नैपचैट ने खुद का ड्रोन निकाल दिया है फॉर टेकिंग योर रील वीडियोस एंड पोस्टिंग। किधर पहुंच गया? Amazon तो डिलीवर करना चालू कर दिया है। तो लेट्स होप इंडिया विल जॉइन देम सून, वेरी सून। वेरी सून। सो इन 10 years यू थिंक दैट पॉसिबल? यस, वेरी पॉसिबल। तो ह्यूज स्कोप है आगे है। फिलहाल ग्रे है लेकिन आगे स्कोप है। आगे है, नहीं हुआ तो हम मेरे जैसे और लोग हैं जो खींच के लेके जाएंगे उसको बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे उनके लिए। लेट्स होप। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड वो होना भी चाहिए बिकॉज समवेयर आई थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी अपग्रेड विद द वर्ल्ड, नॉट बिहाइंड द वर्ल्ड। ऑल्सो कम्पीट विद देम। यस यस। एंड मेक इन इंडिया के लिए जो पार्ट्स या जो कुछ भी इंफ्रा चाहिए होता है, इज इंडिया रीचिंग देयर? Because I know that it is not very easy to beat China at this point. Because not only this, even in the mobile sector if you see or any electronics, तो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट करके द प्राइस रेशियो जो है वो उनका बीट करना इट विल बी वेरी टफ. बट नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स एंड वर्किंग इन इंडिया, can we reach there if we are very persistent? If we are very persistent, like dedicatedly, possibly yes. मतलब उनके लेवल में आ सकते हैं, टॉप 5 टॉप 10 में तो आ सकते हैं अपन. बट अभी फिलहाल के लिए इट्स वेरी लर्निंग कर्व फॉर इंडियाज ऑल्सो. कैसे करते हैं, कहाँ से सोर्स करते हैं. वी डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी. ये पार्ट्स होते हैं, ये पता नहीं है. हाँ, तो दिस ड्रोन्स आर वेरी न्यू फॉर इंडिया. तो उनको कहाँ पे यूज़ करते हैं वो भी पता नहीं लोगों को. सो इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग. Got it. I also wanted to ask you about what are your thoughts about the current education system in India? Whoa. Okay. Considering current situations, if I have to suggest, you have to guide someone, I will possibly say कि you learn from books also, you learn from the outside world also. Mm-hmm. So if you're one of that person who can do 50-50 from the book, also from the world, then you can be a next possible successful guy. Mm-hmm. But if you're studying just from the books, you won't be there, you won't reach somewhere. तो अगर आप बुक से भी पढ़ते हो, बाहर जाके उसको इम्प्लाई करते हो, उसको अप्लाई करते हो, कुछ उससे सीखते हो, so you get somewhere a step ahead. Mm-hmm. और I'll suggest कि अभी जो जनरेशन चालू है, it's a very technological वाला टेकी जनरेशन, गीक्स बन रहे हैं अभी. Not geeks but it's very curiosity build. टेक्नोलॉजी उनको इजीली एक्सेसिबल है, इंटरनेट एक्सेसिबल है. सो इवन दैट्स हेल्पिंग देम कि टू लर्न आउटसाइड द बुक्स. करेक्ट. तो वो भी उनको केटर कर रहा है. बहुत से बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, डिग्रीज के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं. मतलब ये डिग्री हो गया तो वो डिग्री हो गया तो कोई और डिग्री. बट उसके साथ जो वो डिग्री जो सिखा रही है, उसका नॉलेज टेस्टिंग या फिर खुद को एक आउट ऑफ द बॉक्स डालना, वो आई थिंक इज बहुत वेरी मच नेसेसरी. हाँ, बस अपन को मतलब बस सर्टिफिकेट लेके उसको जॉब तो नहीं मिलेगा. यू हैव टू परफॉर्म एट दैट जॉब. अगर आप परफॉर्म ही नहीं करें तो जॉब का फायदा क्या. सो बस सर्टिफिकेट कुछ काम का है नहीं. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. आई कैन टोटली रिलेट एंड इट्स वेरी ट्रू. आई एग्री. डू यू थिंक दैट करंट हंगर of corporate jobs by parents and students, दोनों की तरफ से, it is getting more and that is killing the invention that could possibly happen in India? कि invention पूरा चूर चूर हो रहा है हमारे तरफ से. हाँ, creativity जा रहा है. There are no innovations happening. I mean not at the scale at which we should perform. हो रहे हैं. A country like Switzerland is being more innovative than us. So and उनका population तो मतलब their entire population is less than our engineering population. So yet they are innovating, but we are not, because our everyone, the students, the teachers, the college, the parents, everybody is in the hunger of corporate jobs, job security, 9 to 6. So is that killing the invention in India? Very much. I can say it's a very herd mentality कि बच्चे को सीखना है, बच्चे के पास skill sets है, but द हायर अप्स, द पेरेंट्स और द पीयर प्रेशर, वो बोलते हैं कि नहीं तू ये नहीं, ये कर, तू पैसे कमा, फिर शादी कर, घर बसा. मतलब अभी जो ऊपर वाले जो है, आई विल से कि अभी 96 बोर्न्स और 90s और 20s के बीच में जो भी बच्चे थे, सो वो ऐसे बच्चे हैं जो क्रिएटिव फील्ड को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रेजुएशन एजुकेशन वाइज को भी कर रहे हैं. मतलब बट
आफ्टर दैट जो भी रहेगा 2000 बॉन्ड्स के बाद जो रहेंगे वो वेरी टेक्निकल, वो बस क्रिएटिव निकलेंगे ऐसे लग रहा है मेरे को, बिकॉज उनके ऊपर जो लोग थे वो दोनों साइड से गुजरे हुए हैं. सो ये दे हैव अ बोथ एक्सपीरियंस कि कॉर्पोरेट में भी जाना है या खुद का भी कुछ करना है. कॉर्पोरेट में कैसा हो रहा है, एवरीवन वांट्स टू लर्न एंड अर्न फ्रॉम हियर एंड देन गो आउटसाइड एंड देन लर्न एंड अर्न देयर एंड देन कम बैक हियर एंड देन कम बैक हियर. यस, तो वो चल रहा है यहाँ पे और वो बंद होना चाहिए. बंद होना चाहिए. इधर सीख रहे हो वहाँ वहीं पे कमाओ, मस्त रहो. अपना देश तो अपना देश होता है. हाँ, कहीं पर भी जाओ. हाँ, तो घूम फिर के यही आना है. एग्जैक्टली. आई थिंक दैट पर्सनल हसल नीड्स टू स्टार्ट एट वेरी अर्ली टाइम. रुको मत, जो है करो, सीधा करो. क्या बात है यार, आई टोटली एग्री. एंड तेजस, हाउ वुड यू डिफाइन बीइंग सक्सेसफुल? What is success according to you? It's a very cliche, I will say very cliche dialogue. वो लोग कहते हैं कि should be a very peaceful. I'll say successful कभी होता नहीं है. You just keep on learning. Successful जब रहता है when you get a sense of thinking कि क्या बोलते हैं उसको, satisfaction, personal satisfaction कि ये शॉट मैंने बोला था, मैंने ये गोल अचीव किया with a whole support, moral support. सक्सेसफुल उसको कहते हैं जो रात को चैन की नींद सोए, ऐसे बोलते हैं. बट आई थिंक दिस वेरी क्लीशे वाला मूवमेंट. मतलब क्या चैन की नींद तो काम करके थक के भी सोते, तो वो भी चैन की नींद होते हैं. करेक्ट. तो what is success according to you? If you have to define it, जैसे साइंस में करते थे बचपन में, डेफिनेशन उसका. हाँ, डिफाइन मॉलिक्यूल, वैसे डिफाइन सक्सेस बाय तेजस. I won't say I am successful, so मैंने अभी तक वो महसूस नहीं किया. I'm still learning. But still, अब तक की जो जर्नी थी उसके ऊपर कोई डिराइव करने बोला तो क्या बोलोगे? What is success? A very tough question. कुछ भी, whatever you feel, may it be very candid. For me, मतलब वो जो रिस्पेक्ट लोग देते हैं अपने को, मतलब कि अपने लिए कोई लोग रुकते हैं, अपने को इम्पोर्टेंस देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है. तो आई से कि वो मेरे लिए एक सक्सेस है कि लोग आपके लिए अभी रुकते हैं, आपके लिए एक टाइम निकाल के रखते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं. शेड्यूलिंग होने लगता है. यू गेट टाइम, सो यू गेट कंसिडर्ड इनटू अ सर्टन सर्कल. वहाँ पे जो रिस्पेक्ट मिलता है आपको, वेरी वेरी अलग ही फील रहता है उसका. इट्स वेरी, so that momentarily we can say is success for you. For me सबके लिए अलग हो सकता है, but for me it's very definitely this question was only for you and what you feel about it. So I mean, after listening to everything that you have been through and the experiments you have been doing, I personally feel that you have had a great journey and it is an inspiration to many people who are trying to figure out कि देखो, मतलब एक बंदा कॉमर्स से आके कोविड में द वेरी रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, तभी एक आइडिया डाल के ही हैज स्टार्टेड. और आज रेड बुल रेसिंग इंडिया, महिंद्रा, बजाज एंड मेनी डिफरेंट बिग रेसर्स आर कंसल्टिंग हिम. ही इज gradually increasing his portfolio as well, and you are killing it, man. So I'm very happy to have been associated with you in some or the other way, and I wish you all the very best for your future, and may you keep growing like anything, man. So thank you for talking with us and giving us time. No, thank you.